आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इस प्रांगण में 68वां स्वाधीनता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर और हम सबके प्रिय भाई योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सभी से निवेदन कि जैसे ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, आप सभी यहाँ फाउंटेन के पास आ जाए। ध्वजारोहण के बाद जनगण मन होगा और उसके बाद विधिवत कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम में होगा। आप सभी को निवेदन कृपया ध्वजारोहण के लिए अपने अपने स्थान पर यहाँ पहुंचे। Good afternoon, everybody. Like how we have got our Indian independence with a little sacrifice, and today all of you are also asked to do a little bit of sacrifice because there's some load shedding problem. We request you to bear with us and just wait for a couple of minutes before we begin the program. India completes 68 years of freedom, and today we at Maharaja Agrasen Technical Education Society have gathered to celebrate our Swatantrata Divas, reminding ourselves that this Swatantrata or this independence which we also unmindfully enjoy is a gift endowed to us by the continual struggle and countless sacrifices of those millions of freedom fighters who fought for our Indian independence. Today, at Maharaja Agrasen Technical Education Society, we celebrate the priceless gift of our Indian independence, remembering all those freedom fighters right from the beginning of Tipu Sultan, who is considered to be the first ever freedom fighter, to Mangal Pandey the revolutionary, to Jhansi Ki Rani, whom we fondly remember as Khub Ladi Maradani Thi, Jhansi Ki Bo Rani Thi, to the young martyrs like Shahid Sukhdev, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, who in the spirit of Sarfaroshi ki tamanna, ab hamare dil mein hai, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, embraced death. I welcome all our dignitaries, our chief guest Yogendra Chandolia, Mr. Nand Kishore Garg, all the trustees, all the directors of both NAIMS and NEET to please come and light the lamp. Saraswati Sharade, Ma Saraswati
I request
जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। Everybody. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। Perfection, despite all hindrances. I think these young boys have shown us today how, despite the fact that there was no light, they did not stop their singing. Wonderful. I think give them a big round of applause, please. Moving on. Now, let me invite all the dignitaries, all the audience. After the worship of the country today, it's time for us to actually start the day with the usual proceedings. First of all, today we have with us our chief guest, the leading political thinker and an exemplary statesman, Mr. Yogendra Chandolia, Mayor of North Delhi. Mr. Yogendra Chandolia is an important BJP leader, a senior BJP leader, and is currently the standing committee chairman of MCD. Mr. Yogendra Chandolia holds a very special hat-trick record of being elected 3 times in a row in Karol Bagh constituency. He started active political work, holding responsible positions in Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad and Bharatiya Janata Party since his college days. Mr. Yogendra Chandolia has won a number of municipal council elections. Sir, we are truly honored to have you with us today. A very, very hearty welcome to you. May I request Dr. Nand Kishore Garg to please present a bouquet of flowers as a token of welcome. Then we have with us our very own Dr. Nand Kishore Garg, who is as prolific an educationalist as he is a statesman. Before I speak of his work in both the fields, sir, I would want your permission to quote your words, where you have said, "The nation will grow when we stop waiting for things to happen, but when we start doing our bit to make things happen." This, I think, is the essence and motivation of his tremendous work, both as an educationalist and as a statesman. Let me just tell you what his contribution is as an educationalist. Every year, about 265,000 students pass out their 12th standard in Delhi, while only 90,000 students get absorbed in the state-run colleges. So what happens to the rest? Where will they find quality education? It is here that Dr. Nand Kishore Garg has done his bit by building an institute like Maharaja Agrasen, where students can close their eyes and be assured that they're going to get quality education. Besides, one very important work of Dr. Nand Kishore Garg is that he has founded an organization, a trust called as Bharat Lok Shiksha Parishad, which is actually running 1,000 schools in the rural tribal India. That, I think, is the real contribution to the field of education. Apart from being an educationalist, Dr. Nand Kishore Garg is a senior BJP leader and an MLA from Trinagar Assembly constituency of Delhi. I can go on telling you, but I'll just tell you one small bit. He has been awarded as the best MLA
during the tenure of 1998 and 2003. I think this is a very important award, especially at a time when we find our parliamentarians fighting for petty issues like rooms, making pepper sprays, and then slabs, and then whatnot. I think it is parliamentarians like Nandkishore Garg who can actually give all the youngsters hope that there is a hope in parliamentarians. So, may I request M.L. Goyal, Director of MATE, to please welcome Dr. Nandkishore Garg. To present bouquet to Shri Mohan Garg Ji, Joint General Secretary, MATES. If there were no speeches, there was no independence, right? It is just because of speeches that we have gained independence. If the leaders would not speak, how would they communicate? And that's why the difference. Modi is such a popular leader because he speaks. And now is the time for speeches. I request our chief guest to please come and address the gathering. So, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, शिवदत्त गुप्ता जी, श्री गोयल जी, मोहन गर्ग जी, हमारे दिल्ली के एमसीडी के पूर्व कमिश्नर एसपी अग्रवाल जी, मेरे सामने उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के अंदर 15 अगस्त से पूर्व स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। यह हम कार्यक्रम पिछले 68 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। हमें आज़ाद हुए 68 वर्ष हुए हैं। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, RWS सोसाइटी, मार्केट एसोसिएशन, सभी लोग इसको अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और आज इस कॉलेज के अंदर, कॉलेज के इस सभागार के अंदर ध्वजारोहण के बाद बहुत अच्छे देशभक्ति के गीत यहाँ प्रस्तुत किए गए। ये जो आज़ादी हमें मिली है, इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के अनेक देशभक्तों ने संघर्ष किया। हमारे उस समय के नेताओं ने बहुत लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाकर हम आज़ाद हुए। लेकिन आज भी आवश्यकता है, 68 साल के बाद भी, जो हमारे फंडामेंटल हैं, जो हमारे अधिकार हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं। हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात हमें करनी चाहिए। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं हम निभाने में हम पीछे हैं। देश के अंदर किसी ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज इस परिवर्तन के दौर में, क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, और उससे पहले भी देश के अनेक माननीय प्रधानमंत्री हुए हैं, और लगातार 68-67 सालों से ध्वजारोहण होता है। लेकिन कल पूरा देश बड़ी अच्छी निगाहों से मोदी जी क्या कहने वाले हैं और किस दिशा में हमारा देश आगे जाएगा, पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि मैं राजनीतिक बात में नहीं करना चाहता, लेकिन हालात हमारे देश के ऐसे हुए, आज आवश्यकता है जिस प्रकार मोदी जी जैसे व्यक्ति की, उसी प्रकार अन्य हम बात करें। अगर हम इसी अग्रसेन यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कितनी ईमानदारी और मेहनत के साथ यहाँ जो लोग बैठे हैं मंच के ऊपर, उन्होंने जो बीड़ा उठाया वो एक आसानी से पूरा नहीं हो गया। उसके लिए कितनी धन की आवश्यकता होती है, उसके बाद ये बच्चों को शिक्षा मिलती है, कितनी उन्होंने मेहनत की होगी, उसके बाद आज इतना बड़ा संस्थान जो बन के तैयार हुआ है। इसके पीछे कहीं ना कहीं
सम्मानित मंच की बहुत बड़ी मेहनत है। और उनके पीछे जो नंदकिशोर गर्ग जी, जो पार्टी के हमारे दिल्ली के बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, और उनकी उन नेताओं में गिनती की जाती है। राजनीति में बहुत लोगों को काम करने का मौका मिलता है, लेकिन जो एक संदेश दे सकते हैं, जो एक बात कहकर लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, ऐसे बहुत कम राजनीतिज्ञ होते हैं, जिसमें डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का नाम है। तो आज आवश्यकता इसी प्रकार के लोगों की है। आज हमारा दिल्ली नगर निगम ने इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को अनेक रूपों में किया। पहले हम भी उसी प्रकार से, जो परिपाटी होती थी, टाउन हॉल या सिविक सेंटर पर ध्वजारोहण किया और अपनी इतिश्री कर ली। हमने 3 दिन का एक मेला लगाया, कल प्रारंभ किया, सैनिटेशन ड्राइव किया और कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने का जो एक सपना हम काफी दिन से देख रहे हैं, शायद वो हम पूरा नहीं कर पाए। और मोदी जी का लगातार यही कहना है, क्योंकि नंदकिशोर जी तो लगातार उनसे मिलते रहते हैं, कि दिल्ली नगर निगम को चुस्त और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा कि हम 100 दिन के अंदर इस दिल्ली को ठीक करने का प्रयास करेंगे और एक जो करप्शन का जो मामला इस पूरे देश के अंदर जो सत्ता जो परिवर्तन हुई है, उसके ऊपर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। और आज हमने दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारियों को, पार्षदों को एक शपथ दिलाई कि हमें जो जिम्मेदारी जो मिली है उसे निष्ठा के साथ, हम ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। मैं मानता हूं कि 68वां स्वतंत्रता दिवस यह कुछ देश के लिए बहुत कुछ लेकर आया है, और जो लोगों की निगाहें, जो लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देकर और उनको बागडोर सौंपी है, तो हर फील्ड के अंदर, चाहे वो फील्ड कोई सी भी हो, उसी के अंदर आने वाले समय के अंदर कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन सब चीजें अच्छे तरीके से वह होंगी। और मैं नंदकिशोर गर्ग जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और नंदकिशोर जी वास्तव में राजनीतिज्ञ तो मुझे लगता है कि बाद में हैं, पहले शिक्षाविद हैं। और अभी जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के अंदर 75% जो गरीब लोग उनके क्षेत्र में जो रहते हैं, जय जय कॉलोनी के अंदर, उन लोगों का वो सम्मान करेंगे। और उन लोगों को कोई ना कोई दिशा की आवश्यकता होती है। अगर वो उनको दिशा सही मिल जाए, कोई प्रॉपर गाइडलाइन उनको मिल जाए, तो वही लोग हमारा जो है, जो हमारे सबसे अच्छी अगर कोई काम हम कर सकते हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। बगैर शिक्षा हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को इतनी शक्ति दे कि देश को ये एजुकेशन देने का काम करें। और आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को, आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे जवानों ने जो हमारी रक्षा करते हैं, उनको भगवान ताकत दे। और जिन नेताओं ने हमें आजाद कराया था, और जिन हमारे देशभक्तों ने, सरदार भगत सिंह, ऐसे सरीखे लोग, सुभाष चंद्र बोस, रानी की झांसी लक्ष्मीबाई, जिनका अभी बात की जा रही थी, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और हम प्रण लें कि जो आज़ादी हमें मिली थी, इस आज़ादी को बरकरार रखते हुए और आगे हम देश और समाज की सेवा करेंगे, देश को उन्नत जगह पर ले जाएंगे, पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। इन्हीं के साथ आपने यहाँ मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया। हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Shri Prem Sagar ji is giving a memento, a token of love to Shri Yogendra Chandoliya ji. May I request Prem Goyal ji to please address the gathering. Our chief guest, Shri Yogendra Chandoliya ji, Mayor North Delhi and Senior Leader BJP. Honorable Dr. Nandkishore ji Garg, Founder Chairman of the institution, esteemed trustees, respected directors, learned faculty members, dear students, staff, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to extend my heartiest greetings and felicitations to
each and everyone present here on the eve of Independence Day. I also send my greetings to brave soldiers of Indian Army who guard our borders to defend the nation and ensure our security and safety. I also salute the freedom fighters who sacrificed their lives for the freedom of the nation and enabled us to live a glorious and respectful life. At the stroke of midnight of 15th August, we shook off the shackles of British rule and the country became free. It was a moment of glory and respect. श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, महापौर उत्तरी दिल्ली नगर निगम, प्रेम सागर गोयल जी हमारे मुख्य संरक्षक, श्री शिवदत्त गुप्ता जी संरक्षक, श्री ओपी गोयल जी, श्री आर.के. गुप्ता जी, श्री अशोक गुप्ता जी, श्री आर.के. गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी टी.आर. गर्ग जी, जगदीश मित्तल जी, मोहन गर्ग जी, डॉक्टर सी.एस. शर्मा जी, डॉक्टर एम.एल. गोयल साहब, एस.पी. अग्रवाल साहब, ज्ञानेंद्र जी, वीरेश जी और दोनों इंस्टीट्यूट्स के परिवार के सदस्यों, 67 साल पूरे आज़ादी को हो गए। आज़ादी है तो इससे पहले गुलाम थे, गुलाम क्यों थे, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आना चाहिए। कितने दिन रहे, कैसे आज़ादी मिली, गुलामी किसको कहते हैं, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में आने चाहिए। आखिर आज़ादी केवल अंग्रेज़ों से प्राप्त की थी या उससे पहले भी हम गुलाम थे, और क्या आज़ाद आज भी हैं या नहीं, मानसिक रूप से आज भी हम आज़ाद हैं, इतना मानने वाले भी मैं समझता हूँ बहुत कम लोग होंगे। मैं यदि आज पूछूं कि आज के अखबारों में सबसे आशा की किरण की न्यूज़ क्या थी जिससे हम सबको गर्व हो सके, तो कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करेंगे, पहले स्टूडेंट्स में से, फिर मैं टीचर्स में से। पहले स्टूडेंट्स में से, आज के अखबारों में ऐसी खबर जिससे आपको लगता हो कि बहुत अच्छी खबर है, कोई भी स्टूडेंट नहीं। अब अध्यापकों में से पीछे लास्ट में जो, हाँ, नोबेल पुरस्कार तो नहीं पर प्राइज मिला, और मैथमेटिक्स से कोई प्रोफेसर एक बार थोड़ा सा खड़ा होंगे, कोई भी अपने में से मैथमेटिक्स के अपने इंस्टीट्यूट में ब्रह्मगुप्त कहीं लिखा देखा है आपने किसी ने? इंस्टीट्यूट्स में कहीं ब्रह्मगुप्त लिखा देखा हो? स्टूडेंट्स में बताएं ब्रह्मगुप्त कौन थे, क्योंकि दोनों ये रिलेटेड हैं। जो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जिस भारतीय को अमेरिका का मैथमेटिक्स में 2 लोगों को मिला है पुरस्कार, जो राजस्थान से जाकर पुरस्कार मिला है जिनको, उनके दादा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए उनको घर में एक माहौल मिला, अपने भारतीय होने पर उनको गर्व था। वो संस्कृत के वो श्लोक पढ़ते हुए जो दादा से कुछ सीखा था, तो उसमें ब्रह्मगुप्त में इसलिए पूछ रहा हूँ, जो ब्लॉक नंबर हमारा 4 है, 2 नंबर ब्लॉक पे ब्रह्मगुप्त है। वो नाम सोच समझ के कभी रखा था हमने, जब 2001 में रखा। हम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करें तो गुलामी की जो मानसिकता भी दूर होगी। ब्रह्मगुप्त एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे,
ब्रह्मगुप्त शर्मा लिखते थे, क्यों गुप्त भी हैं शर्मा भी। मैथमेटिक्स के ऊपर जो कुछ काम उन्होंने किया था उसको आज विश्व ने रिकग्नाइज किया है। और रिकग्नाइज भी उन्होंने कहा कि संस्कृत की जो रिदम है उनके अनुसार से सारी चीज़ें, परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में हम समझते हैं तो हमें लगता है कि ये सब कुछ विदेशों ने हमें सिखाया। इन्हीं चीज़ों को यदि हम भारतीयता के प्रकाश में सीखें तो हमें समझ में आएगा कि हमने सब कुछ सिखाया। इसीलिए मनोज कुमार की फिल्मों में जो बात, यदि हमने लोगों को शून्य ना दिया होता, डेसिमल ना दिया होता, तो कुछ भी आज इस देश में विदेश में कहीं कुछ नहीं होता। पर ये सिखाएगा कब, कौन? जो टीचर्स बैठे हैं वो कम से कम कृपया आजकल इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इतना हमने आपको यहाँ साहित्य ला के रखा हुआ है, कुछ चित्र लगाए हुए, कुछ खुले में भी बड़े चित्र लगाए हुए हैं। तो जितने भी अध्यापक हैं, यदि इन सब ब्लॉक्स के नाम और जो जो चित्रों में हैं उन पे यदि 2-2, 3-3 पेज कोशिश करें लिखने की, आने वाले दिवाली तक कम से कम मैं चाहूँगा कि आप अधिकांश जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें। आजकल तो सब कुछ नेट के ऊपर है। आप यदि कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो इस देश से जो ये एक हीन भावना है, इस देश से वो हीन भावना दूर कर देंगे तो इस देश में एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकता है। परंतु हमने 65, 66, 67 साल में अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हमारा नीचे चला गया और चरित्र नाम की चीज़ को हम भूल गए। जो हमारी गुलामी के कारण थे वही कारण आज भी विद्यमान हैं। उन कारणों को दूर किए बिना स्वतंत्रता सेनानियों को एक दिन हम याद कर लें और 2 दिन उसके देशभक्ति के गीत रेडियो टेलीविज़न पे आ जाएं, अखबारों में भी अपनी फ़ोटो लगा के बड़े बड़े ऐड सब राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें दे देती है और इतिश्री समझती। फिर बोलने में मनीष तिवारी भी बोल सकता है शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिनको आतंकवादी आज भी पढ़ा रहे हैं बंगाल की किताबों में या देश में, आज मनीष तिवारी जी को अचानक ज्ञान हो गया कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। 10 साल तक अब शासन में थे, इससे पहले 50 साल थे, तो क्यों नहीं याद आता? तो इसलिए इस देश के लोगों को बहुत चीज़ें समझनी होंगी, केवल राजनीति से कुछ नहीं होगा। 14 अगस्त को यह देश की पहले 2 भुजाएं कटी थी, ये जिस दिन तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो 15 अगस्त की आज़ादी का दिन मनाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि एक दिन पहले अंग्रेज़ों ने जानबूझकर एक दिन पहले पाकिस्तान 2 टुकड़े किए थे, जिसका बांग्लादेश बना। तो हमारे क्यों टुकड़े किए गए? क्यों जवाहरलाल नेहरू को ये झिझक हुई कि जिस रावी के किनारे उन्होंने कसम खाई थी 26 जनवरी 1930 को कि हम पूर्ण स्वराज्य लेंगे, वो रावी का किनारा, वो लाहौर के बिना देश आज़ाद हो, तो हमारे किसी नेता को कुर्सी लेने की जल्दी थी, किसी को शर्म भी नहीं आई और जनता ने भी उनसे नहीं पूछा कि साहब ये आज़ादी कैसी। रेड क्लिफ जिसने देश की रेखाएं खींची थी टेढ़ी मेढ़ी, वो अक्टूबर तक डिसाइड नहीं कर पाया था कि लाहौर भारत में रहेगा नहीं रहेगा, परंतु झंडा फहराने की जल्दी थी। तो रात के 12 बजे, अरे सुबह के 5 बजे भोर के टाइम में कोई झंडा फहराओ, 6 बजे फहराओ, रात के 12 बजे डायरेस्ट विद द डेस्टिनी की बात करें तो कोई आज तक की किसी देश की रात को आज़ादी का दिन आया तो शायद 100-150 देश आज़ाद हुए, कहीं नहीं मिले। तो भारत देश है, विडंबनाओं से भरा देश है। यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके समय पार करते, कड़वी बात करने की सुनने की लोगों को आदत नहीं है। इसलिए मेरे जितने प्राध्यापक बैठे हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा पहले तो अपने आप को इक्विप करें। एक नरेंद्र मोदी 125 करोड़ लोगों का भला अकेला नहीं कर पाए। उसने लोगों में एक विश्वास पैदा कर दिया है, एक आशा का संचार किया है और ये दिखा दिया है कि बहुत बड़ी बड़ी हार्वर्ड के पढ़े हुए इंग्लिश बोलने वाले ही देश नहीं चला सकते। उन्होंने देश का भट्ठा ज़्यादा बिठाया है। देश को चलाने के लिए जनसाधारण में से पैदा हुआ व्यक्ति देश को ज़्यादा समझता है और ज़्यादा समझता है तो ज़्यादा बढ़िया चला सकता है और हम उसी वर्ग के लोगों में काम करते हैं।
आज यहाँ लगभग 1700 स्टूडेंट्स ने एडमिशन अभी फर्स्ट ईयर में हुआ है। दुर्भाग्य है कि जिस देश की राजधानी में जिसमें सारे महान शिक्षाविद और नेता बैठे हों, उसका सेशन 1 अगस्त से शुरू होना था। अभी 17 में से शायद 350 बच्चे आए होंगे, दोनों 350 बच्चे भी यूनिवर्सिटी नहीं भेज पाई। 14 तारीख हो गई, 15 की छुट्टी आ जाएगी, फिर 17-18 की छुट्टी आ जाएगी। तो एक एक प्रेशियस दिन पढ़ाई का, जिस देश में जिसकी वैल्यू ना हो, उस देश को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ना पढ़ने का माहौल है, ना पढ़ाने का माहौल है, केवल डिग्री लेना चाहते हैं और केवल तनख्वाह लेना चाहते हैं हम लोग। इसीलिए इस देश में सब कुछ चल रहा है भगवान भरोसे। राइट टू एजुकेशन दे दिया, सबको शिक्षा मिल जाएगी। 10 लाख टीचर की शॉर्टेज है एज ऑन टुडे। 10 लाख टीचर, भारत को सबको शिक्षा देने के लिए टीचर्स की ज़रूरत है। और टीचर को ट्रेन करने के लिए कितनी ज़रूरत है? तो अभी बहुत कुछ ठीक करना है, अब ठीक हमने ही करना है। और हमने करना है तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ही मजदूर भी बनना पड़ेगा और लोगों को काम करने के लिए मजबूर करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, जब जाके एक पीढ़ी मेहनत कर लें हम, तो 15-20 साल में इस देश के अंदर समस्याओं का निराकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी ओर कोई तिरछी नज़र से देखेगा नहीं, क्योंकि हम आत्मविश्वास से भरे, स्वाभिमान से भरे देश के नागरिक तैयार हो जाएं, तो हमारी देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण होगी। फिर वो तराने गाने वाले अच्छे लगेंगे और उस देश के फिर शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। हर बरस क्यों, हर दिन क्यों नहीं याद रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और प्रेरणा लेकर हम दूसरों को प्रेरणा दे सकें, इतना बढ़िया काम हमें करना होगा। भारत के 67 साल की आज़ादी के बाद आने वाले 5-6 साल आज हम संकल्प लेके जाएं कि हम अपना 100% आउटपुट देंगे। हम लेते बहुत कुछ है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये बात दिमाग में लेके आए। इस देश की सभी समस्याओं का निराकरण होगा, हम ही करेंगे और हमने ही करनी है। ये एक विजयी भाव, एक संकल्प भाव सब अपने मन में लें। मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद।